Hello everyone, hope you are all doing well and fantastic. This is Adil Ahmed War, and today we are going to discuss a very beautiful concept of set theory, that is regarding the cardinality of two very fundamental sets of our number system. And the two sets are the set of natural numbers and the set of integers. So before going ahead, I will be discussing some fundamental definitions that will be very useful while proving this concept. What that is, do we really have more integers than natural numbers? क्या हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स वो ज़्यादा है या जो हमारे पास इंटीजर्स है वो ज़्यादा है? इस पॉइंट को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, क्योंकि अगर हम कॉमन सेंस को देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वो जो आंसर होगा दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर व्हाट आवर कॉमन सेंस विल आंसर हियर. सो इसको हम पूरा मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, लेकिन उस प्रूफ से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होंगी. तो उनमें से सबसे पहली जो डेफिनेशन होगी दैट इज व्हाट इज अ सेट. सेकंड थिंग, द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट. Cardinality of a set. Third will be the definition of function, and the fourth thing will be types of functions. And these definitions will be very useful while proving whether we have more integers or more natural numbers. So I will be assuming that you must be knowing what are natural numbers and what are integers. So let us start discussing these terms one by one. And the first term we have is, what is a set? Set is a well-defined collection of objects. Okay, so set क्या है? This is a collection of objects. These objects can be numbers, figures, alphabets, letters, population, anything. Objects can be anything. But the main point here is this well-defined collection. तो एक collection को हम तब set बोल सकते हैं जब क्या, ये collection जो है ये well-defined हो. Well-defined का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक clarity होनी चाहिए. There should be a clear mind कि ये जो elements these belong to this set. That is, we should not be having any confusion. We should not be having ambiguity whether these elements belong to this or not. Let me give you an example. You people, give me a set, give me a collection of first 5 natural numbers. So if I ask you, anybody will be saying that 1, 2, 3, 4 and 5. These are the first 5 natural numbers, and this collection of numbers will be called a set. Why we are calling this a set? Because there is a clarity that these numbers 1, 2, 3, 4 and 5 belong to this set. And what is this set? This set is the collection of first 5 natural numbers. और अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि give me 5 best batsmen, of IPL, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि मेरे लिए कोई और 5 बेस्ट बैट्समैन होंगे, किसी और के लिए कोई और 5 होंगे. सो यहाँ पे जो हम कलेक्शन ले रहे हैं बैट्समैन की, आईपीएल में कौन से बेस्ट बैट्समैन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वो किसी और को रख रहा है, मैं किसी और को रख रहा हूँ. तो इसको हम सिर्फ कलेक्शन बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे. सो आई एम सपोजिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज अ सेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड the collection. So set is nothing but is a well-defined collection of objects. So any collection when we do not have any confusion or ambiguity whether the elements belong to that collection or not, that collection will be called a set. So the next point here we are going to discuss is the cardinality of a set. Cardinality of set हम किसको कहते हैं? The number of elements belonging to a set, say A, is called its cardinality. So cardinality of elements हम कहते हैं कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसको हम उस सेट की cardinality कहते हैं. और this is usually denoted by, say if we have set A and this is denoted by these lines, the modulus lines around this A, this is denoted as the cardinality of set A, or it is written as cardinality of CAD, and like this, cardinality of A. For example, we take set A as having elements A, B, C and D. If we count the number of elements of this set are A, B, C and D, these are 4 elements. So the cardinality of this set is 4. So this is the cardinality of set. This is very basic, and let us move to the next definition. So the next point here is, what is a function? So function किसे कहते हैं हम? Let us define this one.
a function from some set A to some set B is a mapping that maps each element of set A to one and only one element in some set B. So फंक्शन के लिए फर्स्टली हमें चाहिए दो सेट्स, ठीक है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दो सेट्स लिए, कोई सेट ए और कोई सेट बी, ठीक है। सो फंक्शन हम कैसे डिफाइन करें, ये कोई मैपिंग होगी, ठीक है, जो कि मैप क्या करेगी, हर एक, दैट विल मैप ईच एलिमेंट ऑफ ए। व्हाट इज द फंक्शन, दिस इज मैपिंग दैट मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ ए। कैसे मैप कर रही है, हर एक एलिमेंट ए का जो है हर कोई एलिमेंट मैप हुआ होगा किस पे, सिर्फ जिसकी मतलब इमेज जो होगी हर एक एलिमेंट की, दैट शुड बी वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सम सेट बी। दैट मीन्स कि जो फंक्शन है ये एक मैपिंग है जो किसी सेट ए के एलिमेंट्स को मैप कर रहा है किसी सेट बी पे, लेकिन कैसे कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैपिंग ऐसे कर रहा है कि ए का जो हर कोई एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट्स पे मैप किया गया होगा। और कैसे किया होगा कि हर कोई जो एलिमेंट है किसके, ए के, उनकी सिर्फ सिंगल इमेज होगी बी में, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, let me take the set A as set A containing 1, 2 and 3, okay, and the next set B is the set containing alphabets A, B, C and D, okay. So I'm defining a function f from set A to set B, from set A to set B। कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं 1 को मैप कर रहा हूँ A पे, ओके, एंड सेकंड दिस 2 को मैं मैप कर रहा हूँ B पे, और जो ये 3 है इसको मैं मैप कर रहा हूँ B पे अगेन, ठीक है। सो लेट अस सी इफ दिस डिफाइंस अ फंक्शन और नॉट। फर्स्टली हमारे पास दो सेट होने चाहिए जो कि मैप कर रहे हैं A टू B, दैट मीन्स कि एलिमेंट्स A को मैप कर रहा है किसके, ऑन एलिमेंट्स ऑफ B। कैसे मैप कर रहा है, लेट अस सी, ये पहले तो हर किसी एलिमेंट को मैप कर रहा है, दैट मीन्स दिस मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ A, दिस इज सेटिस्फाइड हियर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इज मैपिंग टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन B। दैट मीन्स कि हमें चेक करना है कि जो ये एलिमेंट्स हैं ए के, क्या इनकी सिर्फ सिंगल इमेज है बी में या नहीं। अगर वो सेट्स होगा तो ये जो हमने यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन की, मतलब ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, सो दिस इज ए फंक्शन। लेट अस चेक, यहाँ पे देखो 1 की जो इमेज है सिंगल इमेज है ए है, ठीक है, 2 की भी सिंगल इमेज है बी है, ये भी ठीक है, 3 की भी एक सिंगल इमेज है बी है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 2 और 3 की सेम इमेज है, दैट इज नॉट द कंसर्न। कंसर्न हियर इज यहाँ पे एक तो सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, सेकंड थिंग हर किसी एलिमेंट ए के हर किसी एलिमेंट की जो इमेज होनी चाहिए वो सिंगल इमेज होनी चाहिए, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, फंक्शन। सो दिस डिफाइंस ए फंक्शन। यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन के यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट होता है कि क्या ये जो बाकी जो एलिमेंट्स है इनका क्या रोल है, और ये जो दो सेट्स है इनके क्या नाम है, ठीक है। लेट अस नेम देम। दिस इज जो पहला वाला जो सेट है जहां से हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जहां पे हम इनको मैप कर रहे हैं वो जो कंप्लीट सेट है, ये मतलब ए बी सी एंड डी, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, इसको हम कोडोमेन। और जिसपे ये मैप किया गया जो भी मतलब इमेज बन रही है, यहाँ पे इमेज क्या क्या बन रही है, इमेज यहाँ पे ए और बी ही बन रही है, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं मतलब सी और डी, इन पे कोई भी एलिमेंट ए का मैप नहीं किया गया है। सो जो ये वाला जो सेट है जिन पे मैप किया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने अभी डिफाइन किया इसमें डोमेन क्या है, डोमेन सेट ए जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1, 2 एंड 3। ऐसी जो कोडोमेन है वो क्या है, वो एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए बी सी एंड डी। और जो रेंज है इस फंक्शन के वो कौन से है, जिन पे मतलब जो एक एलिमेंट है जिन पे वो मैप किए गए, और वो जो एलिमेंट्स है वो है ए और बी। तो जो ये सेट हमारे पास बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, लेट अस नेम दिस एज सेट आर। और ये सेट आर क्या है, दिस द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन। सो while discussing what a function is, तो लास्ट पे जब हमने एग्जांपल दिया तो वहां पे कंसेप्ट अराइज होता है, अगर किसी की नजर पड़ गई होगी तो ये एग्जांपल थी हमारे पास, ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखी थी यही एक फंक्शन थी हमने जो अभी एग्जांपल में ली थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट होता है कि क्या अगर हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग मैप करें तो क्या होगा, क्या ऐसे कि यहाँ की जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो सारे एलिमेंट उन पे मैप करेंगे तो क्या होगा। तो इस सारे जो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो पहला जो मैंने सेट ए लिया था उसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए थे, 1, 2 एंड 3, और बी जो सेट है उसमें मैंने क्या एलिमेंट लिए, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 को ए से मिलाया था, 2 को बी से मिलाया था और 3 को
C से मैप, दैट मीन्स कि आई हैव मैप्ड 1 to A, B to 2 to B and 3 to C। और यहाँ पे जो एक एलिमेंट है C, दिस इज अनमैप्ड, इस पे इसको मतलब D पे मैंने कोई भी एलिमेंट मैप नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया था, आई मैप्ड 1 to A, 2 to B and 3 to C, और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं रहा था, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने जो तीसरी वाली एग्जांपल ली थी, मैंने 1 को A पे मैप किया था एंड 2 और 3 को B पे मैप किया था। ऐसे ही मैंने 1 को A पे मैप किया था, यहाँ पे 2 और 3 को B पे मैप किया था, और C एंड D इन पे मैंने कोई भी एलिमेंट मैप नहीं किया था। तो ठीक है, पहले हम देखें कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है, ठीक है। ये चारों जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट्स मैप है, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स मैप है, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स मैप है, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स मैप है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 की एक ही इमेज, 2 की एक ही इमेज, 3 की एक ही इमेज, ऐसी सब में सब की एक ही इमेज। दैट मीन्स ये चारों जो है ये फंक्शंस डिफाइन कर रही है। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट की तो अलग अलग इमेज है ही, दैट इज द पॉइंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एक और भी चीज है कि बी के हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्री इमेज है, ये जो ये प्री इमेज होती है और ये इमेज होती है। यहाँ पे भी हर एलिमेंट की अलग अलग प्री इमेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की तो अलग इमेज है, प्री इमेज है, लेकिन बी की जो प्री इमेज है वो 2 और 3 है। ऐसे यहाँ पे ए की तो मतलब अलग प्री इमेज है, लेकिन बी की जो है 2 प्री इमेज है, ठीक है। जहाँ पे हमारे हर एक एलिमेंट जो बी का जो हर कोई एलिमेंट है उसकी डिफरेंट प्री इमेज होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 1, ठीक है। यहाँ पे भी देखो हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट प्री इमेज है, तो ये भी क्या हुआ 1 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की तो सिंगल प्री इमेज है, लेकिन क्या है 2 और 3 जो है ये एक ही एलिमेंट पे मैप किए गए हैं, दैट इज बी। सो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी 1। ऐसे यहाँ पे भी 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे बी के एक ही एलिमेंट मैप किए गए हैं, सो दिस इज आल्सो है मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। अब एक और पॉइंट आपने नोटिस किया होगा, वो ये है कि यहाँ पे जो है कोडोमेन में डी एलिमेंट जो है वो रेंज से एक्स्ट्रा है। रेंज क्या है, जो जिन पे मैप किए गए होंगे, यहाँ पे ए बी सी पे मैप किए गए, लेकिन जो डी है दैट इज एक्स्ट्रा इन द कोडोमेन, ठीक है। दैट मीन्स कि जो कोडोमेन है वो रेंज से बड़ा है। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर है, यहाँ पे भी रेंज और कोडोमेन बराबर है। यहाँ पे जो रेंज है वो छोटा है एज कंपेयर टू द कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इन जो दो में कोडोमेन बड़ा है किनसे, रेंज से, लेकिन यहाँ पे जो है रेंज और कोडोमेन बराबर है, ठीक है। जहां पे रेंज और कोडोमेन वायर फंक्शंस इन विच रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन या सरजक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही जो फंक्शन जिन पे क्या रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे कोडोमेन बड़ा है रेंज छोटा है, ठीक है। तो इन वाले फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शंस, क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 to 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस, ठीक है। यहाँ तक अब देखो द पॉइंट हियर इज कि जो सारा खेल है वो रेंज और कोडोमेन का है, ठीक है। हमें पता चलना चाहिए कि रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, उसके बेसिस पे हम इनटू और ऑन टू डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज 1 1 एंड मैनी 1। हमारे पास पता होना चाहिए कि हर कोई एलिमेंट जो ए का है उसकी मतलब वो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ बी के उन पे मैप किया गया है, तो वो 1 1 होगी। अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट पे मैप किए गए तो वो मैनी 1 होंगे। अब ये जो हमारी जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं कि क्या हमारे पास इंटीजर्स ज्यादा है या नेचुरल नंबर ज्यादा है या दोनों बराबर। लेट अस कम टू द पॉइंट हियर। सो यहाँ पे हमने 1 1 ऑन टू मैनी 1 इनटू ये 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए, ठीक है। अब इनका हम यूज करके जो अपना हम जो मेन पॉइंट जिसके अराउंड जो सारा जो लेक्चर चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग हियर वी हैव 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में क्या कर रहे थे हम कि हर कोई जो एलिमेंट है ए का, मतलब डोमेन का जो हर कोई एलिमेंट है वो बी के अलग अलग एलिमेंट्स पे मैप किया जा रहा था, ठीक है। मतलब 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट मैप टू सिंगल एलिमेंट इन बी। वैसे यहाँ पे भी है ए 1 2 और 3 जो है ये अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ
बी पे मैप किए गए हैं। द डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पे जो है जो रेंज और कोडोमेन वो बराबर है, यहाँ पे कोडोमेन ज्यादा है और रेंज छोटा है। लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे कि जब भी 1-1 होगी, ठीक है, ये तो सारे मैप होंगे इनमें, तो यहाँ तो ये सारे मैप होंगे, यहाँ कुछ रह जाएंगे, ऐसी फंक्शन हो सकती है। और इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, दिस इज 1-1 फंक्शन। ओके, 1-1 फंक्शन, ये भी 1-1 फंक्शन है, ठीक है। क्यों, हर कोई एलिमेंट जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ बी पे मैप किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अगर हम दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है कितनी है, 3, यहाँ पे भी क्या है 3, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है 3 और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है 4 है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे जो क्या होगी 1-1, उसमें जो हमारे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी वो यहाँ तो छोटी होगी, यहाँ बराबर होगी किससे, कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि जब ये 1-1 है तो हर किसी एलिमेंट के लिए तो अलग अलग इमेज होगी, या हर किसी एलिमेंट ऑफ बी के लिए अलग अलग प्री इमेज होगी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो पहले तो ये एलिमेंट तो सारे होंगे ही होंगे, यहाँ पे जैसे 3 एलिमेंट है तो बी में भी कंफर्म 3 होंगे, कब, जब ये 1-1 होगी। यहाँ 3 से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे हमने 3 एलिमेंट, इनके अपने 3 तो होंगे क्योंकि दिस इज 1-1 फंक्शन, और एक्स्ट्रा में कोडोमेन में कुछ हो सकते हैं जो रेंज में लाई नहीं करते। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, जब 1-1 होगी, ठीक है, व्हेन वी हैव अ 1-1 फंक्शन देन द कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, then the cardinality of domain is less than or equal to cardinality of codomain, ठीक है। तो जब 1-1 होगी, दिस इज द मेन पॉइंट बाय विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर प्रूफ, जो कि हमारा जो मेन मकसद है कि क्या हमारे पास इंटीजर्स ज्यादा है या नेचुरल नंबर्स, उस चीज को प्रूव करने के लिए जो है नाउ दिस इज बिकमिंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर दैट वेरी प्रूफ, ठीक है। तो अभी तक हम डेफिनेशन यूज कर रहे थे, डेफिनेशन सीख रहे थे कि क्या फंक्शन क्या होती है, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, कोडोमेन, डोमेन और रेंज, ये सब सीख रहे थे। अब हमारे पास जो सारा जो डेफिनेशन हमें चाहिए वो तो हमारे पास आ गया। अब इनका यूज करके अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 1-1 की जो डेफिनेशन वो यूज करके हमें पता चल रहा है, हम बाय यूजिंग दैट डेफिनेशन के 1-1 क्या होती है, हमारे पास ये पता चल रहा है कि हर किसी एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज है, या हर किसी एलिमेंट के लिए अलग अलग प्री इमेज है, और उनको यूज करके हमें ये मिल रहा है कि जो कार्डिनलिटी होगी, किसकी कार्डिनलिटी क्या होती थी कि किसी सेट में कितने एलिमेंट है, दैट मीन्स कि ए में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो हमेशा यहाँ तो छोटे होंगे या बराबर होंगे किससे, एलिमेंट्स इन कोड में। ये पॉइंट आ गया, कब आ गया, जब फंक्शन 1-1 होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो हमने अभी देखी थी एक डेफिनेशन की, ऑन्ट फंक्शंस हम किसको कहते हैं। ऑन्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होती है जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है ए बी एंड सी, और ऐसे यहाँ पे हमारे पास है 1 2 एंड 3, या इसको हम अपने तरीके से जैसे हम ले रहे हैं 1 2 3 एज डोमेन एंड दैट एज कोडोमेन, उसी के हिसाब से लेते हैं। सो लेट अस टेक सेट 1 2 एंड 3 एंड सेट बी एज ए बी एंड सी, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि 1 को ए से, 2 को बी से एंड 3 को सी से, ठीक है, तो इसको हम ऑन्ट फंक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, ठीक है। और अगर हम एक और फंक्शन लेते हैं लाइक दिस, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी जो कोडोमेन है वो किसके बराबर है, रेंज के बराबर। सो दीज फंक्शंस वेयर वी हैव कोडोमेन इक्वल टू रेंज, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन्ट फंक्शन। सो हियर ये जो ऑन्ट फंक्शन है इसमें हमने 2 टाइप्स ले लिए। एक तो ये कि जहां पे हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट पे डिफरेंट प्री इमेज मिल रही है, ऐसे भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर मतलब ए के जो है जो प्री इमेज है वो डिफरेंट है, लेकिन बी पे जो है 2 एलिमेंट्स मैप किए गए हैं। लेकिन एक चीज जो है यहाँ पे भी रेंज कोडोमेन के बराबर है और यहाँ पे भी रेंज कोडोमेन के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑन्ट फंक्शंस। अब अगर हम बात करेंगे वही जो हमने अभी 1-1 के बारे में की थी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी के में क्या रिलेशन रह रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हर कोई एलिमेंट जो ए है वो अलग अलग उसकी जो इमेज मिल रही है, या हर किसी एलिमेंट की अलग अलग प्री इमेज मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो किसके बराबर आ रही है, कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये भी लेकिन क्या है, ऑन्ट फंक्शन, और यहाँ ये भी एक ऑन्ट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट किस पे हैं, बी पे मैप किए गए हैं, लेकिन ये भी एक ऑन्ट फंक्शन क्योंकि इसकी जो रेंज है दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो हमें कार्डिनलिटी ऑफ ए है दैट इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। ऐसे अगर हम कोई भी
कोई भी फंक्शन लेंगे, कौन सी फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वहां पे हमें क्या मिलेगा, जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो हमें मिलेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये हमेशा मिलेगा हमें। जैसे अभी हमें 1 1 के जो फंक्शंस है उन टाइप्स में हमें क्या मिला था, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है। सो अगर फंक्शन 1 1 भी हुई और ऑन टू भी हुई, ठीक है, अगर 1 1 हुई तो ये वाली जो रिलेशन ये सेटिस्फाई होगी, अगर ऑन टू हुई तो ये वाली रिलेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है। जब ये दोनों सेटिस्फाई होंगे 1 1 एंड ऑन, ठीक है, जब ये दोनों होंगे तो उसमें क्या होंगे, हमारे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी वो किसके बराबर होगी, कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। सो दीज टू आर इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। कब, जब एक फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू बी हो। दिस इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल प्रूविंग कि जो हमारे इंटीजर्स हैं और नेचुरल नंबर्स क्या ये बराबर है, क्या ये ज्यादा है या कम है। सो लेट अस कम टू दैट पॉइंट कि क्या हमारे पास नेचुरल नंबर्स ज्यादा है, इंटीजर्स ज्यादा है, या दोनों बराबर है। ठीक है। अगर हम अगर हम कोई एक ऐसी फंक्शन ला पाए, कोई एक ऐसी फंक्शन ढूंढ के लाए कि जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और कहां से कहां डिफाइन हो रही हो, जो कि नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे डिफाइन हो रही हो। ठीक है। सो लेट अस कम टू दिस पॉइंट, और इसी के साथ जो हमारा लेक्चर होगा वो खत्म होगा। तो व्हाट इज द पॉइंट, अगर हम कोई 1 1 जो कि 1 1 भी हो और एंड ऑन टू बी, दोनों फंक्शंस 1 1 भी हो और ऑन टू बी हो, अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या होगा, जो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन है या कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन है, दैट विल बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, बट ए इज कोडोमेन इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन। तो अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास क्या एक ऐसी फंक्शन आई जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, एट दैट टाइम हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन है वो किसके बराबर होगी। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज कि क्या हमारे पास इंटीजर्स ज्यादा है, नेचुरल नंबर्स। स्टे ट्यून्ड, दिस इज गोइंग टू बी अ रॉकिंग रिजल्ट हियर। ठीक है। तो जो अभी तक हमने सारी डेफिनेशंस यूज करके हम एक रिजल्ट पे पहुंच गए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन भी हो, दैट मीन्स अ फंक्शन विच इज बाइजेक्शन फंक्शन। इन दैट वेरी केस जो हमारे पास जो कार्डिनलिटी होगी किसकी, डोमेन की, डोमेन की जो कार्डिनलिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी के बराबर होगी। ठीक है। कब होगी, जब एक फंक्शन क्या होगी, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, ऑन टू बोथ, ये जो जब दोनों होंगे तो जो कार्डिनलिटी किसकी होगी, डोमेन और कोडोमेन की। जो हमारा रिजल्ट था, क्या हमारे पास जो कार्डिनलिटी है नेचुरल नंबर्स की और किनकी, इंटीजर्स की, क्या इनकी कार्डिनलिटी बराबर है, ज्यादा है या कम है। ठीक है। अगर हम एक ऐसी फंक्शन ला पाए जो 1 1 हो और ऑन टू दोनों, और फंक्शन किन किन के बीच में डिफाइन हो, फंक्शन डिफाइन हो फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स। और अगर ये जो फंक्शन अगर ये 1 1 भी हुई और ऑन टू भी हुई, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होगी वो किसके बराबर होगी, इंटीजर्स की कार्डिनलिटी होगी। लेट मी डिफाइन दैट फंक्शन। आई हैव अ फंक्शन दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है। अगर वो 1 1 एंड ऑन टू हुई तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि जो कार्डिनलिटी होगी किसकी, नेचुरल नंबर की, वो किसके बराबर होगी, इंटीजर्स की। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे, फंक्शन एफ, दिस इज डिफाइंड एज, फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज n divided by 2 where n is even and minus n plus 1 divided by 2 when n is odd। ठीक है। देखिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, कहां से, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू z। ठीक है। एक फंक्शन कहां से कहां डिफाइन किया मैंने, n से लेके z पे, दैट इज, इसमें जो मैं वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे n की, ये जो n की वैल्यू है ये नेचुरल नंबर से आएगा। ठीक है। और जो जिसपे जाएगा ये कोडोमेन जो है यहाँ पे क्या है, z है। अगर ये जो फंक्शन हम देखेंगे कि ये 1 1 और ऑन टू हुई तो हमारे पास क्या आएगी, जो कार्डिनलिटी ऑफ n जो होगी
वो कार्डिनलिटी ऑफ z के बराबर। दैट मीन्स कि जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है उतने ही हमारे पास इंटीजर्स भी होंगे। ठीक है, ये जो है कॉमन सेंस के हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है कि जो इंटीजर्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर पे हमारे पास 1 है और इसमें हमें 1 और -1 भी है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 है, यहाँ पे -2 और 2 भी है। ठीक है, मतलब हर एक नंबर जो नेचुरल नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 इंटीजर्स है। लेकिन 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 जो ये फंक्शन है और जो हमने कंसेप्ट भी यूज किए, ठीक है, उस हिसाब से ये फंक्शन जो है ये भी हम देखेंगे 1 to 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। और उस हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, जो कार्डिनलिटी ऑफ n और z है, दैट इज इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, वो बराबर है। लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 इंटीजर्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे असल में पॉइंट क्या है कि दीज बोथ आर हैविंग कार्डिनलिटी इन इनफिनाइट नंबर। ठीक है, ये काउंटेबल है लेकिन इनफिनाइटली काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबली इनफिनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, दीज एक्चुअली हैव इनफिनाइट मेंबर्स। ठीक है, वो जब इनफिनाइट मेंबर्स होगी तो वहां पे हमारा कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ काम करेगा। ठीक है, तो जो हमने अभी पीछे देखते आ रहे हैं कि जब 1 होगी तब क्या हो रहा है कि कार्डिनलिटी में क्या रिलेशन बन रहा है, और जब ऑन्ट हो रहा है तब कार्डिनलिटी में क्या रिलेशन बन रहा है। सो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिया, जैसे हम अगर यहाँ पे 1 डालें, जैसे हम यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ पे सिर्फ क्या डालना है हमें, इवन नंबर, सो हमने 2 डाला, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ऑड नंबर है, 1 डालेंगे यहाँ पे, 1 + 1 डिवाइड बाई 2 और बाहर माइनस है, 1 + 1 2 2 2 कैंसिल हो गए, -1 1 भी आ गया, -1 भी आ गया। ठीक है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 आ गया, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ गया। ऐसे ही 4 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 डालेंगे, 3 + 1 डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा -2। ऐसी तो हर कोई एलिमेंट जो n का है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 1 -1 -2 2। ऐसे अगर हम इसमें 0 डालेंगे तो 0 भी मिलेगा। तो हर कोई एलिमेंट हमें मिल रहा है, कौन सा, हर कोई एलिमेंट z का, हर कोई एलिमेंट मतलब z के हर किसी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट किसमें n में है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज मिल रही है। मतलब हर किसी इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज मिल रही है। दैट मींस दिस इज ऑन। ठीक है, क्यों 1 है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज 2 मिल रही है, -1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज 1 मिल रही है। तो हर किसी इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज मिल रही है, किसमें, n में। दैट मींस इट इज ऑन टू। और क्या मिल रहा है कि अगर हम इसमें अलग अलग एलिमेंट डाल रहे हैं कि जैसे 1 डाला तो -1 आया, 2 डाला तो 1 आया, 4 आया तो 2 आया, ऐसे ही हम इसको क्या देख रहे हैं कि दिस इज 1 1 एज वेल, दिस इज 1 1 एज वेल। क्या कि मतलब नेचुरल नंबर के 2 सेम एलिमेंट एक ही इंटीजर पे मैप नहीं हो रहे। दैट मींस दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू एज वेल। इसको हम वैसे भी प्रूव कर सकते हैं कि n1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई 2। तो उसमें क्या मिल रहा है हमें, 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास n1 इज इक्वल टू n2 मिल रहा है। दैट इट इज 1 1। या इसमें अगर प्रूव चेक करेंगे हम, वो n1 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -n2 + 1 डिवाइड बाई 2, माइनस कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल होगा, 1 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n1 इज इक्वल टू n2। तो यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज 1 1। और ऑन टू तो है ही, क्योंकि हर किसी एलिमेंट इंटीजर के हर किसी एलिमेंट के लिए हमारे पास एक प्री इमेज मिल रही है, किसमें, नेचुरल नंबर में। तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ पे एक फंक्शन मिला जो कि 1 1 है ऑन। सो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन आई जो कि 1 1 है और ऑन टू है। ठीक है, और जो फंक्शन कहाँ से डिफाइन किया, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स तक। तो जो अभी हमारे पास पीछे जो हम कंसेप्ट बना के आ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, दोनों है, तो हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन इज इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या है, दैट इज n, एंड कोडोमेन क्या है, दैट इज इंटीजर। सो दिस फंक्शन जो यहाँ पे हमें मिल रहा है, दिस इज 1 1 है ऑन टू, दोनों है, तो हमारे पास क्या आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर्स। लेकिन हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से क्या मिल रहा था हमें नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग 2 इंटीजर्स मिल रहे थे। जैसे 2 के लिए हमें क्या मिल रहे थे, 2 इंटीजर्स, 2 और -2, और एक्स्ट्रा में एक फोकट में एक 0 भी मिल रहा था। ठीक है, तो कॉमन सेंस के हिसाब से कार्डिनलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, इंटीजर्स की। लेकिन क्या है, हमारे पास क्या मिल रहा है लास्ट पे कि कार्डिनलिटी ऑफ natural numbers is equal to cardinality of integers. So this is the
फैंटास्टिक रिजल्ट वी आर एक्चुअली प्रूविंग, ठीक है। तो असल में क्या है, जितने हमारे पास इंटीजर्स हैं उतनी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि जो कार्डिनलिटी किसकी है, नेचुरल नंबर्स की, दैट इज इनफिनाइट, दे आर काउंटेबली इनफिनाइट, बोथ natural numbers as well as integers, they both are countably infinite, they are countable. Why they are countable numbers are those numbers which can be put in the process of counting. प्रोसेस ऑफ काउंटिंग क्या है कि हम एक के बाद एक को रख सकते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे हम इंटीजर्स के बाद भी, ऐसे 1 के बाद 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे ये नेगेटिव में -1 के लेफ्ट में आएगा -2, ऐसे दे कैन बी पुट इन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। सो दीज बोथ आर काउंटिंग नंबर्स, इंटीजर्स एज वेल एज नेचुरल नंबर, बट दे आर काउंटेबली इन्फिनाइट। सो वी कांट से बाय आवर कॉमन सेंस कि इसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई फंक्शन होनी चाहिए जो कि 1 1 और ऑन्ट हो। यहाँ ऐसा अगर 1 1 हुई तो उसमें भी हम एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। कोडोमैन की जो कार्डिनलिटी होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी किससे, कार्डिनलिटी ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमैन, ठीक है। ऐसे अगर ऑन्ट हुई तो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमैन इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट को हम यूज करके क्या कह सकते हैं, जब काउंटेबली इनफिनाइट सेट होंगे या इनफिनाइट सेट जिसकी जो कार्डिनलिटी वो फाइनाइट ना हो, तो वहां पे हम ये वाली जो चीजें हैं ये यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या जो कार्डिनलिटी है वो किसकी ज्यादा है और किसकी कम है या बराबर है। सो हमारे पास एक क्रैकिंग रिजल्ट आएगी, जो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ integers. Hope you all have enjoyed this session and thank you very much.